नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स पार्ट इज 2 एंड क्लास 12th एंड सब टॉपिक इज नोमेनक्लेचर of alcohol, phenol and ether. So first we write nomenclature of alcohol, phenols and ether, right? So first of all we see the functional group of alcohol, phenol and ether. So first we write alcohol. It's a functional group. Functional group is OH, right? OH. As for example, suppose this is methyl group and one hydrogen is replaced by OH, then this is alcohol. इसको क्या बोलेंगे? Alcohol, right? Because OH group is present at the place of H. So it's very simpler. Alcohol is there, and the name of this alcohol. This is methanol, or in common name this is methyl alcohol. So friends, in naming alcohol, it is alkane and E is replaced by OL, and E is replaced, OL is added at the place of E, and naming is alkanol. This is IUPAC name. IUPAC, right? अब देखो, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एल्केनॉल लिखना है, तो फर्स्ट वन इज देयर, नाउ सेकेंड इज CH3 CH2 OH, राइट? सो क्या लिखेंगे? एंड इन नोमेनक्लेचर देयर आर 2 rules, फर्स्ट, select the longest carbon chain, and second, functional group must be given preference. इसको हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है दोस्तों? इसका क्या नाम होगा? select the longest carbon chain 1 and 2. So it is derived from ethane. So you can write alkanol लिखना है तो क्या लिखेंगे? ethanol भी लिख सकते हो, OL is there, or you can write ethane 1 ol, right? Or its common name is, this is ethyl group is there, this group is ethyl, and this is your alcohol, so you can write ethyl alcohol, right? So इस तरह से हम करते हैं नोमेनक्लेचर। कुछ मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। नाउ योर फर्स्ट एग्जांपल इज, ओके, हियर यू सी OH group is present. So first of all select the longest carbon chain. So carbon chain is this one, 1 2 3 4 5 6, giving preference of OH group, alcohol group. Now you write here 2 functional group are there. Cl is also present here, but in preference table OH is preferred in comparison to Cl. सो नेम इज, क्या नेम होगा भाई? तो 4 पे क्लोरो है, सो फर्स्ट यू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर 4 क्लोरो, and 2 and 3 position
two methyl groups are there. So we write here 2, 3 dimethyl, and your original compound is your 6 carbon atom having OH group, so hexanol, और you can write hexane 1 ol, ऐसा भी लिख सकते हैं, और you can write 4 chloro. It is better to write 2,3 dimethyl hexane 1 ol, ऐसा लिखिए, राइट. next is this one. So first of all, select the longest carbon chain giving preference of functional group. There are two functional group here, OH and double bond. So preference table में OH का preference ज़्यादा in comparison to double bond. So OH को prefer करना है, and you number the carbon atom first, second, third, fourth, fifth. And this is पेंटीन 1 ol होगा, तो पेंटीन कितने पोजीशन पर है ये देखना है. एट पोजीशन नंबर 2 डबल बॉन्ड इज देयर, सो मेन कंपाउंड इज योर पेंट. हाउ मेनी इन? 2 इन लिखेंगे भाई, चूंकि और लिखना है, ये नहीं लिखेंगे, ओल लिखना है अभी. 2 इन 1 ol, राइट. सो दिस इज द करेक्ट nomenclature. Now we will see the nomenclature regarding phenol. Okay. Now phenol is aromatic alcohol, or you can say aryl alcohol. When H is replaced by OH group in benzene ring, then the compound is called phenol. This is your phenol. You can write the molecular formula like that, C6H5OH. तो इसको हम क्या लिखेंगे? This is phenol according to IUPAC. It is accepted. And in common name you can write this is your phenyl and this is alcohol. तो आप लिख सकते हैं इसको फेनाइल अल्कोहल, लेकिन ये लिखना मत, ये चलता नहीं है, फिनॉल लिखना भाई. सो एरोमेटिक अल्कोहल जो भी होगा उसका हम नेमिंग भी इसी तरह से करते हैं. कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें. फर्स्ट एग्जांपल इज, फर्स्ट वन इज दिस इज योर फिनॉल एंड हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप. सो हाउ कैन यू नेम इट? कैसे इसका नाम करेंगे? सो विथ रेस्पेक्ट टू OH ग्रुप you number the carbon atom. This is first, this is second, third, fourth, fifth and sixth. ठीक है. सो हम क्या लिख सकते हैं? 2,6 डाइमिथाइल, दिस इज 2,6 डाइमिथाइल, and main compound is your phenol. So you write here phenol. इसका एक नाम और भी दे सकता है. क्या दे सकता है बच्चे? ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू OH, तो यू कैन राइट ऑर्थो डाइमिथाइल फेनॉल, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट, नाउ दिस इज द कंपाउंड, सो यू कैन राइट दिस इज फिनॉल एंड एट पोजीशन नंबर 2 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट. सो यू कैन राइट 2 मिथाइल फिनॉल, राइट. वन मोर थिंग इज देयर कि if CH3 and OH group is present at benzene ring, then this is called cresol. And its position is ortho with respect to OH and CH3.
So orthocresol you can write. Similarly, if CH3 group present here and OH group is present here, so its IUPAC name is 1,2,3,3-methyl phenol you can write, or you can write this is metacresol because position is meta with respect to each other, so you can write metacresol, right? Next, here compound is written, you have to write the name. So this is two OH groups are present, so you can name it in this way. This compound is benzene and position is 1 2, benzene 1 2 डाइओल, वैसे ही 3 होगा तो ट्राइओल, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 5-ethyl हेप्टेन 2,4 डाइओल। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हेप्टेन, so heptane means 7 carbon atom, so you draw 7 carbon atom, 1 2 3 4 5 6 7, right? Now you numbering from this side or this side, that doesn't matter. So suppose you are numbering from this side, this is carbon number 1 2 3 4 5 6 and 7. Now here at carbon number 5, this is ethyl, तो यहाँ आप ethyl ऐड कीजिए, CH2 CH3, this is ethyl, and 2,4 diol, so 2 this is OH and 4 this is OH, and remaining valency is fulfilled by हाइड्रोजन एटम। तो इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसमें 1 2 एंड 3, ऐसा कर दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें कितने आएंगे भाई, 1 2 3 बॉन्ड्स आर कंप्लीटेड, सो 1 बॉन्ड इज देयर, हियर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हियर 1 हाइड्रोजन, दिस इज 1 हाइड्रोजन 1 and 2 हाइड्रोजन, एंड हियर 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, सो यू कैन राइट द नेम लाइक दैट, CH3 CH OH CH2 CH OH CH C2H5, you can write CH2 CH3. So this is the structure, or you can write the formula, you know. Okay, next, now come on nomenclature of ether. So first of all, functional group. Functional group is O having alkyl group R and R. It may be symmetrical or unsymmetrical. Alkyl group may be different orders, ऐसा भी हो सकता, ठीक है। And according to IUPAC, it is named as alkoxy alkane, राइट, एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना है, 11th क्लास में भी पढ़ा है तुम लोग। जैसे एज फॉर एग्जांपल CH3O CH3 ऐसा है, तो यू हैव टू राइट एल्कोक्सी एल्केन। सो फर्स्ट यू सी इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम एल्केन, मीथेन से ये डेराइव हुआ है जी। एंड एल्कोक्सी, ये कौन सा एल्कोक्सी है भाई, तो ये मिथॉक्सी है, राइट। सो नेम इज योर मिथॉक्सी एंड मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, राइट। सिमिलरली if CH3O CH2 CH3, then its name is
तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 and 2 and functional group is this one O, so you can write मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? मिथॉक्सी इथेन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी देखो एक मैं लिख रहा हूँ, आप इसको समझ सकते हो, CH3CH2O and here CH2CH3 and here also CH3। सो दोनों तरफ देखो एल्काइल ग्रुप है, राइट। अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिविंग प्रीफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सो दिस चेन इज द लॉन्गेस्ट। तो कैसे देंगे? 1 2 3 4 लिखेंगे या 1 2 3 4? तो इधर से बेटर रहेगा कि 2 पे प्रीफरेंस मिलेगा जी। 1 2 3 4, सो ब्यूटेन इज देयर। और 2 पे क्या है भाई? 2 पे ये जो है एल्कोक्सी, तो इसमें इथॉक्सी है। क्या नाम लिखेंगे? 2 इथॉक्सी, इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, राइट। देखो बच्चों, इनका नाम आप कॉमन नेम भी दे सकते हो, जैसे 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से इसका भी नाम लिख सकते हो, एक तरफ इथाइल है दूसरे तरफ मिथाइल है, तो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर, इस तरह से लिखते हैं। देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज योर ईथर इज देयर, so this one ethoxy, methoxy, so you write here methoxy and main compound is, it is derived from benzene, तो methoxy benzene, right। इसको एनिसोल भी कहते हैं भाई, एनिसोल, एनिसोल, right। एनिसोल is also, it's a name, एनिसोल। Next, here ether is there, and how can you name it? So CH3 1 and CH2 whole 6 1 7 and 1 8 carbon atom, so numbering should be from this side। तो ये क्या है आपका? ऑक्टेन है। और ये कौन सा है भाई? ये देखिए C6H5, ये फिनाइल ग्रुप है, दिस इज फिनाइल ग्रुप। सो इसको हम क्या बोलेंगे? फेनॉक्सी। क्या लिखेंगे? फेनॉक्सी, और यू कैन राइट 1 फेनॉक्सी, 1 फेनॉक्सी ऑक्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट, नाउ फ्रेंड्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड 1 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी इथेन। इसका मतलब मेन कंपाउंड इज इथेन, सो यू राइट 2 कार्बन आइटम 1 and 2, एंड दिस इज 1 दिस इज 2। सो 1 पे इथॉक्सी लगा दीजिए, OC2H5, और इस पे क्या लगाओगे? इस पे मिथॉक्सी लगा दो, OCH3। कुछ ब्रेन नहीं लगाना, बाकी जो वैलेंसी है इट इज़ फुलफिल्ड बाई हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? देखो, ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2, ध्यान से देखना, O यहाँ तक आ गया भाई। नाउ दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज O CH3। सो इस तरह से हमारा ये काम हो गया। आप इस तरह से लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स, और आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। तो हम समझते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।